Lok Sabha constituency, meeting up with my organizational units. But today we are here in Pune, where I have reviewed the district's progress in the central sector schemes and also tried to understand the progress so that if there are any further facilitation which the Government of India has to do, we can get to have a picture. So the officials have given me a picture of by each of the central sector schemes and centrally sponsored schemes as to how the progress is happening. Going back to the 3-day visit to Baramati, it was essentially to strengthen the party and its units, also to see what is the feedback from the ground about BJP and its service to the constituency. So, as an opening statement, I say that much and leave it. Obviously, the floor is open, you can always ask me questions. What is your takeaway from the 3 days visit? How do you assess the ground level preparations for the battle, preparing the party? Well, I think I focused on strengthening the organization. I focused on the Karyakarta's inputs on each level. Also wanted to understand if they are actively getting information about how the various central government schemes are reaching the people. If they are not reaching, what could be the reason, and so on. So I have looked at the party and the party units from that perspective. So they've given me an idea of how things are moving. That's my takeaway here. मैं तो संगठन मजबूत करने के लिए आई हूँ और उसका असेसमेंट करके जाऊंगी और संगठन मजबूत करने के लिए और क्या चाहिए और क्या करना है उसका असेसमेंट ही कर रही हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन. सो आई हैव गॉट सम टेकअवेज. आई हैव टोल्ड यू. बीजेपी का संगठन वहाँ पे कैसा है, आपको क्या वहाँ पे अनुभव है? बीजेपी का संगठन अच्छा है, सेवा भाव से बहुत काम कर रही है. कोविड के समय जितना सेवा भाजपा के द्वारा हुआ कोई और अन्य पार्टी के द्वारा नहीं हुआ, ये भी स्पष्ट आई है. सिर्फ पार्टी के द्वारा नहीं आई है, जनता के द्वारा भी वही आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एमएलए और उधर के संगठन के जुड़े हुए मोर्चा यही कोविड से लेकर आज तक ग्राउंड में दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं. नहीं, एक मिनट, one by one please, and the same person afterwards. What is it? Is Baramati Lok Sabha constituency is the matter of prestigious for BJP? Every constituency in India is prestigious for Bharatiya Janata Party, and we will work towards winning each one of them. Mike. You must have been to Baramati city also, and previously many of the senior BJP leaders, including Narendra Modi, Venkaiah Naidu, Arun Jaitley, landed there, and they actually praised the Baramati development model. How do you see that? Because that has been the crux of Sharad Pawar and his family members getting elected for the years. If that's the crux, why are you asking me for a reply on that? You've said it, that you've concluded that that's the crux. So उसके ऊपर मैं क्यों टिप्पणी दूं? पत्रकार के टिप्पणी के ऊपर मैं जवाब नहीं देती, प्रश्न के जवाब देती. I am not here to talk about whose opinion is what. I have come to take care of my party. I am coming. It may be her opinion. I am not here to have a dialogue with anybody on that. क्या चीज़? हाँ जी. हर एक स्कीम के ऊपर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे पिक्चर दिया है। एक प्रश्न मैं उनसे पूछी कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब अगर 100 लोग तक पहुंचना है एक स्कीम, 60%, 70% पहुंच गया, 40% पहुंच गया, ये डेटा तो मिल रही है, ठीक है, मगर 100 तक कब पहुंचेंगे अगर नहीं अभी तक पहुंचा, इसका विवरण मैंने मांगी हूँ। फिर मेट्रो के बारे में और पुणे एयरपोर्ट के बारे में। पुणे एयरपोर्ट के विषय में तो स्पष्ट बोले हैं कि मार्च 2023 के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर दोबारा पूछे, अब तक 70% ही कंप्लीट, 30% और बाकी है कहने में मैंने पूछा 30% मार्च 2023 तक खत्म हो जाएगा, और स्पष्ट तौर पर जवाब आया कि खत्म हो जाएगा। लोहा गांव नहीं, चर्चा नहीं। मैं संगठन के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग को मन लग रहा है कि चुनावी। मैं मेरे संगठन के ऊपर जितनी भी आप मेरे से पूछना चाहते हो पूछो। आप अगर एक डिबेट चुनाव के नजरिया से पूछेंगे तो मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, मेरे संगठन के लिए आई हूँ। एक मिनट एक एक करके जी। नहीं, उसके ऊपर तो लगातार काम चल रही है ना। आप सिर्फ मैं ये जवाब के नाते नहीं दे रही हूँ, और ये पता नहीं आप कौन से मीडिया हाउस में से हैं, मुझे उससे ये नहीं है, मगर जब मैं बोलती हूँ भारत देश में 4% इन्फ्लेशन तक रहना है ऐसे कानून, उससे बढ़कर के 2% और मतलब 6 तक हो सकता है, वो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं हम, उसके अंदर रहना है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर तुरंत इसका ये आएगा टिप्पणी कि नंबर से मतलब नहीं है, गांव में शहर में आम नागरिक को किस प्राइस पर आवश्यक चीज़ मिलती है उसमें लगाम लगना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार याद दिलाती हूँ, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट के लिए पूरे चुपकारा दी है, ड्यूटीज कुछ नहीं है। ये इससे ही दाल वगैरह का इंपोर्ट करने में भी ओपन कर दी है। इसके कारण पिछले महीने से एकदम जो प्राइस ऊपर चल रहा था उसका थोड़ा रुकावट हो रही है। हम लगातार मॉनिटर करेंगे। I'm glad you yourself said it is a slugfest. It is clearly a slugfest only because they want to cover up their failure. I'll actually, if you permit me, I think Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji held a press conference to say what were those projects which were stopped during the earlier administration. So I will give you also the detail if you want. ऑयल रिफाइनरी नानर विलेज में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, एशिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट इन एशिया ऐसे रिफाइनरी का प्लान था। उसको रोकने वाले कौन है? आज वो दूसरे प्रोजेक्ट इधर नहीं आया करके इतना रोना धोना हो रही है, उसको क्यों रोका? फिर वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट जो 65,000 करोड़ का पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो आना था, कोंकण रीजन में, वो सागरमाला का प्रोग्राम के अंतर्गत आना था, जो प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं सागरमाला का प्रोग्रेस। अगर टाइमली शुरू भी होता था तो अब तक एटलीस्ट आधा काम कंप्लीट होने का कगार में आता। उसको रोकने वाले कौन है? कंप्लीटली अपोज्ड बाय MVA। प्रोजेक्ट का ओरिजिनल कंसेप्शन कब हुआ?
इसका 1998 में फर्स्ट टाइम वदावन पोर्ट के बारे में बात हुई, और जब असल में वो लेके सागरमाला में जोड़ करके महाराष्ट्र के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आने के लिए जब प्लान हुआ, उसका रोकने वाले MVA। आप जितना प्रश्न मेरे से सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो इधर नहीं आया उसके बारे में पूछ रहे हैं, एक एक करके ये 4 के बारे में पूछना चाहिए MVA से। फिर मुंबई मेट्रो फेज 3, ये पूरे देश में चर्चा है कि मुंबई का पॉपुलेशन इतना है और सबर्बन ट्रेन्स को यूज करने वाले इतने सारे लोग हैं, उनके सुविधा के लिए एक कार शेड बनना, उसमें रुकावट पैदा करने वाले कौन है भाई? और ये मुंबई के लिए अभी रोना धोना ये कर रहे हैं, क्यों रोका? और उसके कारण आज उस प्रोजेक्ट को अभी लो, फिर भी कम से कम 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाना है? टाइमली प्रोजेक्ट लो और कंप्लीट भी करो, ये होना चाहिए देश के हित में। रुकावट पैदा करते रहो और 4,000 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट जब होने वाले हैं मुंबई जैसे शहर के लिए, उसके लिए कौन उनसे पूछेंगे, कौन उनसे जवाब मांगेंगे, और इस एडिशनल कॉस्ट का जिम्मेदार कौन होंगे? फिर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, अगर इसको परमिशन दे दिया तो श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को चले जाएगा। सिर्फ वो एक कारण था, उसको रोकने का कुछ और कारण नहीं है। क्या भारत देश में बुलेट ट्रेन आना नहीं है? हम ही तो लोग हैं जो जापान जाएंगे, देखते हैं ओ वाह व्हाट अ बुलेट ट्रेन, क्यों भारत देश में ऐसे नहीं होता? और जापान के मदद से सस्ते लोन से वो बुलेट ट्रेन बनाना था प्लान, उसको क्यों रोककर किसको आनंद है भाई? उसको रोकने में किसको अच्छा लग रहा है? सो फॉक्सकॉन के ऊपर प्रश्न हमसे पूछने से पहले इन चारों का जवाब मांगिए, फिर हम बात करेंगे। Who they? No, what are their reactions? Who they? Oh yes, I had a meeting with cooperative people. Okay, people representing different kinds of cooperatives. Some dealing with banks, some dealing with cotton, some dealing with sugarcane. They were extremely happy, and I'm telling you, they were claps after claps. Some of you all were present at that meeting. About the various steps being taken now, reliefs being given to them, taxation concession which was extended, waiving off on long pending arrears for one of the cooperatives, were all appreciated. And the fact that a cooperatives dedicated ministry has been formed after Prime Minister Modi, and people who have lived off exploited cooperative sector never thought of having a separate ministry. Those who हिंदी में सॉरी टूटा फूटा, मगर आप लोग समझ रहे हैं इसीलिए मैं बार बार बोलूंगी हिंदी में। कोऑपरेटिव्स को उनके अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उपयोग करने वाले कोई अलग से मंत्रालय बनाने के लिए कोशिश नहीं की अब तक। अलग से मंत्रालय कोऑपरेटिव्स के लिए बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी है। सो महाराष्ट्र में इतने सारे कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स को कभी राजनीतिक उपयोग करना नहीं चाहिए ऐसे बयान देने वाले कोई बड़ा नेता भी मंत्रालय नहीं बनाया सेपरेटली फॉर कोऑपरेटिव्स। थैंक यू। On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. If any one currency which has held its own and behaved in such a way, or held its own and did not get into a
fluctuation or volatility as much as other currencies, it is the Indian rupee. We have held back very well. We are keeping, RBI and the ministry are keeping very close watch over it. I think I've had representation. Let me see what I can do on it. Thank you very much. I have a flight to catch here. Huh? नहीं, PFI के ऊपर एक्शन हो रही है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए. वो बात बोल रहे हैं. ठीक है, इसमें कमेंट करना है.